आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स, यहाँ मिसलेनियस एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कम डायरेक्टली टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल 28, show that the set of a letter needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal। तो अब सेट ऑफ लेटर्स और लेटर्स या किसी सेट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करना हो, तो हमने पहली एक्सरसाइज में देखा था कि हम लेटर्स को लिस्ट करते जाएंगे, बट रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। मीन्स द लेटर विच इज़ रिपीटेड इन द गिवन वर्ड वी विल राइट ओनली वंस। So set of the letters used in the word cataract is CATR only, and let Y be the set of letters of the word tract. So this set of the letters are TRAC only. Repetition, we will not repeat the letters in the set representation. So in both the cases we are having x is equal to y, as thus both are having this same number of letters, and same letters, same elements. So these are the equal sets. Since every element in x is in y and every element of y is in x, that follows x is equal to y. Example 29, list all the subsets of the sets -1 0 1। ये सेट जिसमें 3 एलिमेंट है -1 0 1, इसके सारे सबसेट्स को हमको लिस्ट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 एलिमेंट से, 1 एलिमेंट से, 2 एलिमेंट से, मैक्सिमम 3 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो फर्स्ट सेट इज़ द 5। फिर एक एक एलिमेंट का हम सेट बनाएंगे, तो ये -1 का बनेगा, फिर 0 का बनेगा, फिर 1 का बनेगा। तो 3 ये हो गए। फिर दो सेट्स एलिमेंट के हम सेट्स बनाएंगे, तो -1 0 0 1 -1 1, ये 3 यहाँ से बन गए। इसके बाद द सबसेट्स ऑफ ए हैविंग 3 एलिमेंट, तो सेट इटसेल्फ, एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस तरह से टोटल 8 सबसेट इसके बन गए, जो यहाँ पे लिस्टेड है नीचे। 5 -1 0 1 -1 0 -1 1 0 1 एंड -1 0 1। देयर आर 8 सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। और ये सभी एलिमेंट्स जो 1 के या 2 के या 3 के बने हुए हैं, सभी कर्ली ब्रैकेट्स में रखे गए हैं, जिससे ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रहे, कुछ स्टूडेंट यहाँ ब्रैकेट भी स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, बट दैट विल बी द इंटरवल इफ़ यू आर टेकिंग 2, सो डोंट यूज़ दैट। Set is represented in the curly bracket, that is the standard notation, so remember them. Example 30, so that A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B. So let A belongs to A, then A is also belongs to A union B, because A belongs to A. Since A union B is equal to A intersection B, so A will also belongs to A intersection B. This means A belongs to B also, because A belongs to A intersection B, means A belongs to both. Therefore A is subset B, because in starting A is taken from A, and finally we show that A also belongs to B, means every element of A is in B, this means A is subset B. अब इसी को उल्टा भी हम दिखाएं, अगर B belongs to B, then B belongs to A union B, but A union B is equal to A intersection B, so B will also belongs to A intersection B. This implies that B belongs to A, therefore B is subset of A. Now we are having A subset B and B subset A, thus A is equal to B. For any sets A and B, show that PA intersection B is equal to PA intersection PB. अब ये भी वही है, let X belongs to PA intersection B. Now here X is the subset of A intersection B, but it is the element of power set of A intersection B. Then X will be subset of A intersection B, so X is the subset of A and X subset of B, so X is subset of PA, X belongs to PA and X belongs to PB, which implies that X belongs to PA intersection PB. Similarly, PA intersection B is subset PA intersection PB, because this is taken as X belongs to PA intersection B initially. Similarly, let Y belongs to PA intersection PB. So Y is the subset of A and Y is the subset of B. Yeah, Y belongs to PA and Y belongs to PB. So Y subset of A and Y subset of B. This means Y is subset of A intersection B, which implies that Y belongs to PA intersection B. This gives PA intersection PB subset PA intersection B. अब ये दोनों ही हमको मिल रहा है। पहले में हमने PA intersection B को PA intersection PB का सबसेट दिखाया,
दोबारा हमने पी ए इंटरसेक्शन पी बी को पी ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट दिखाया। तो दोनों जब एक दूसरे के सबसेट हैं तो बोथ विल बी इक्वल। इक्वलिटी का यही कंडीशन होता है। 32nd क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल। A market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both products? So solution here, solving it, we get, let U be the set of consumers questioned, S be the set of consumers who like the product A, and T be the set of consumers who like the product B. Given that NU 1000, NS 720, NT 450, and S union T, that is expression used here, NS plus NT minus NS intersection T. So this is 720 minus plus 450 minus NS intersection T. So this is 1170 minus NS intersection T. अब ये हमको फाइंड क्या करना है इसमें कि set of who like the product A and T, we have to find in the question what is the least number that must have liked both product, मतलब इंटरसेक्शन का लिस्ट नंबर। तो ये 1000 तभी, मतलब ये लिस्ट तभी होगा जब ये मैक्सिमम हो, मतलब यूनियन मैक्सिमम हो। और यूनियन मैक्सिमम कब होगा? यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा हो नहीं सकता, मतलब एन एस यूनियन टी विल बी मैक्सिमम 1000। और ये 1170 माइनस एन एन इंटरसेक्शन टी, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए 1000। इसका मतलब एन एस इंटरसेक्शन टी क्या होना चाहिए? 170 होना चाहिए, ताकि हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो 1000 आए। देयरफॉर एन एस यूनियन टी इज़ मैक्सिमम हो इन एन एस इंटरसेक्शन टी इज़ लिस्ट, बट एस यूनियन टी इज़ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो एन एस यूनियन टी विल बी लेस आर इक्वल टू एन यू विच इज़ 1000। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एस यूनियन टी इज़ 1000। Thus the list value of n s intersection t is 170। मतलब s यूनियन t मैक्सिमम तभी होगा जब s इंटरसेक्शन t मिनिमम हो, जिसमें कि 170। Hence the least number of consumers who like both the products is 170। Example 33, out of 500 car owners investigated, 400 owned car A and 200 owned car B, 50 owned both car A and B। इज़ दिस डेटा करेक्ट? अब ये देखिए, इसको जो सर्वे किया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया गया है, 500 कार ओनर्स पे किया गया है। अब ये अगर हम यूनियन निकालें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीपल हु इन्वेस्टिगेटेड आइदर हैविंग कार ए और बी, तो अगर वो 500 से ऊपर आता मीन्स दैट इज़ इनकरेक्ट डेटा। सो लेट अस स्टार्ट। Let U be the set of cars owners investigated, M be the set of persons who owned car A, and S be the set of persons who owned car B। अब NU 500 है, चूँकि 500 सर्वे किया गया है, NM 400 हो गया, NS 200 हो गया, और NS इंटरसेक्शन M 550 हो गया। नाउ NS यूनियन M, तो NS प्लस NM माइनस NS इंटरसेक्शन M, दैट इज़ द एक्सप्रेशन। 200 प्लस 400 माइनस 50, दैट इज़ 550। Now it is more than the number of persons investigated, but S union M is subset of U, implies NS union M less or equal to NU. This is the contradiction, so the given data is incorrect। 31st example है, a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket। If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports। अब यहाँ exactly 2 of the 3 sports है, ठीक है। तो अब यहाँ F को F B C ये 3 सेट्स लिए गए, जहाँ पे F जो है फुटबॉल हो गया, नंबर ऑफ सेट ऑफ द पीपल हु प्लेड फुटबॉल, फिर B बास्केटबॉल, C क्रिकेट है। तो NF 38 हो गया, NB 15 हो गया, NC 20 हो गया, NF यूनियन B यूनियन C टोटल 58 जो है, और तीनों लाइक करने वाले या खेलने वाले जो है या मेडल रिसीव करने वाले 3 हैं। अब 3 के लिए जो ये एक्सप्रेशन हो एफ एन एफ यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज़ एन एफ प्लस एन बी माइनस प्लस एफ एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, दैट प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम रखेंगे, ठीक है। गिवन एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी 18, ये दी गई है वैल्यू इनकी,
ठीक है। तो कंसीडर द वेन डायग्राम, इसको इसमें रख के हमने ये वैल्यू निकाली, मतलब हमने इसमें रखा एन एफ यूनियन बी यूनियन सी जो कि 58 है, एन एफ 38 है, एन बी 15 है, एन सी 20 है और एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है। तो ये सब रखने पे हमको मिला एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी 18, मतलब बीच वाली जो माइनस वाली 3 टर्म्स हैं उनकी कंबाइंड वैल्यू हमको मिली है। अब ये वेन डायग्राम देखो आप, ठीक है। अब यहाँ ए बी सी, ए जो है वो सेट ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वाई एंड सी, प्ले एफ एंड बी, बी सी हमको निकालना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ दो दो का हमको दिया हुआ है, तो a प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी, ये दो दो का इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड किया था ये उसकी वैल्यू है। एंड f इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है दिया हुआ। a प्लस डी ये पूरा हो गया f और b के लिए। फिर इसके बाद है b प्लस डी जो कि यहाँ पे आ गया f और c के लिए। c प्लस डी जो कि b और c के लिए है, लेकिन इसमें ये d जो है वो तीनों में ही आएगा, ठीक है। अब उसी को हटाना है हमको, तो यहाँ से हमको मिल गया a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d इज इक्वल टू 18 प्लस d, बट d इज इक्वल टू 3, तो अब वहाँ पे रख देंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 हो गया। विच इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु गेट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।